Good morning, students. Today we will start chapter number 6, formatting and more in Microsoft Office Excel. Last chapter you work how we can working with Microsoft Office Excel. Now today we will discuss how we can formatting the data in Microsoft Office Excel. What is the mean of formatting? Formatting means how we can beautifying the data. Okay, for our requirement. Now you changing the font type, font size, color, है ना, alignment. So we will discuss how we can format the data in Microsoft Office Excel. Now formatting data in a worksheet. हम अपने डेटा को जो हम अपने वर्कशीट बनाया है उसमें फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं. यू कैन फॉर्मेट द डेटा to make it look attractive by applying different font size, color, border to it. You can also format the worksheet structure like changing height of rows, width of column, etc. as per our requirement. ठीक है, हम अपने requirement के according हम हमारे worksheet के structures में changes कर सकते हैं. Like you will change font style, color and border also. Now you should know how to apply formatting the data enter the different cells such as changing the font type, size and alignment etc. ठीक है, to make the content look arranged and attractive. ठीक है, हम जैसे ही हम हमारा जो डेटा है उसमें हम जो भी चेंजेस करते हैं लाइक उसका अलाइनमेंट चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज कलर करते हैं, है ना. सो इससे हमारा जो डेटा है वो कैसा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है. टू डू दिस you need to click on the home tab first, then you will require command button which represented the various types of formatting. ठीक है, आपको वे फॉर्मेटिंग करना है तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, होम टैब पे जाना पड़ेगा. नाउ यू विल सी दिस इज फॉन्ट टाइप, font color, fill color, font color. Now this is alignment, bold, italic and underline. This is font style. Now changing the font type. Okay, the appearance of the type entry can be changed the choosing the font type by clicking the font type arrowhead button and selecting the required font type फ्रॉम द लिस्ट. ठीक है, आप अपने यहाँ पे जो लिस्ट दिया है इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली आप अपने जो डेटा है उसमें जो भी फॉन्ट टाइप चूज़ करना चाहें वो इजीली कर सकते हैं. नाउ चेंजिंग द फॉन्ट साइज. द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड डेटा रेंज कैन बी चेंज बाय क्लिकिंग ऑन द फॉन्ट साइज arrowhead button and selecting the required font size फ्रॉम द लिस्ट. ठीक है, यहाँ से आप अपने फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट यू विल सिलेक्ट अवर डेटा, देन गो ऑन फॉन्ट साइज ऑप्शन. ठीक है, नाउ चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल. द एंटायर्स कैन बी मेक बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन बाय क्लिकिंग ऑन द वेरियस फॉन्ट स्टाइल्स बटन. ठीक है, आप अपने जो डेटा है या जो टेक्स्ट है उसका आपका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं. यू वांट योर टेक्स्ट इन थिकर, सो यू विल क्लिक ऑन बोल्ड बटन. यू वांट slanting, if you want your data in slanting, so you click on italic option. And if you want your text in underline, so you will click on u, है ना. And the shortcut keys of bold, italic and underline is for bold control plus B, for italic control plus I, now underline control plus U. Okay, now changing the font color. The font color of the entries can be changed by clicking on the font color arrowhead button and then selecting the color of your choice. ठीक है, यहाँ से आप अपने फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट रेड कलर में है तो यहाँ से आप फॉन्ट का टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं. ओके, नाउ चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर. इफ़ यू वांट, आप अगर अपने बैकग्राउंड कलर, बेसिक डिफरेंट क्या होता है, वाइट कलर होता है आपके बैकग्राउंड का, बट इफ़ यू वांट टू चेंज योर बैकग्राउंड कलर, सो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में भी इसमें इजीली कर सकते हैं. द बैकग्राउंड कलर ऑफ द सिलेक्टेड सेल कैन बी चेंज बाय क्लिकिंग द फिल कलर एरोहेड बटन एंड देन सिलेक्टिंग द बैकग्राउंड कलर ऑफ योर चॉइस. ठीक है, यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ से हम अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं. Now selecting the alignment. Alignment, you can choose the different alignment for the selected data by clicking on the required alignment button. Align text left, align text center, align text right. ठीक है, ये हमारा अलाइनमेंट ऑप्शन है, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट. हाँ, तो आपके अकॉर्डिंगली आप अपने टेक्स्ट को जैसे भी आप सेंटर में लेना चाहते हैं, आप लेफ्ट में लाना चाहते हैं, है ना, आप राइट में लाना चाहते हैं, तो इजीली यू विल यूज़ दिस अलाइनमेंट ऑप्शन. Now applying the border.
Okay, you can apply various types of border on to the worksheet data by clicking on the border arrowhead button. The most common type of border to apply is border. To remove the border, selected नो बॉर्डर ऑप्शन. ठीक है, आप अपने चाहते हैं कि आप अपने जो डेटा जो टेक्स्ट यहाँ पे टाइप किया है आप चाहते हैं इस पर बॉर्डर आए, सो आप अपने बॉर्डर को चेंज भी कर सकते हैं. लाइक इसमें दिया है टैग बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर. अगर आप बॉर्डर नहीं भी चाहते हैं तो आप केवल इस पर क्लिक कर सकते हैं नो बॉर्डर. बाय डिफ़ॉल्ट नो बॉर्डर ही रहता है, बट इफ़ यू वांट टू चेंज बॉर्डर ऑल्सो, सो यू कैन अप्लाई द बॉर्डर ऑप्शन, एंड यूजिंग दिस ऑप्शन you can easily change the border type. Now formatting and the worksheet structure. How we can formatting the worksheet structure? हम हमारे worksheet structure को कैसे formatting कर सकते हैं? You can also the change height and width of rows and column as per our requirement, and you can also insert new row and column. But first of all you must to learn select row and column to work on them. ठीक है, हमने जैसे सपोज़ हम एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज़ मुझे स्टूडेंट्स की लिस्ट निकालना है ना, कि पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के नेम हैं और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के नेम में उन्हें पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स मिले. सो वी विल मेक वन टेबल ऑल्सो. नो स्टूडेंट्स नेम and marks. Okay, subject wise marks. Suppose Hindi, English, Math, CVS. Okay, so selecting a row. To select row, click or row header, the area will row address is be written. ठीक है, ये हमारा row header है एंड दिस इज कॉलम हेडर. ए बी सी आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है, हमारा कॉलम हेडर है. 1 2 3 ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा रो हेडर है. ओके, नो सेलेक्टिंग अ कॉलम. टू सेलेक्ट अ कॉलम क्लिक ऑन द कॉलम हेडर. ठीक है, अगर हमें हमारे कॉलम के हेडिंग जो है वो उससे चेंज करना है या तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले उस कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे. द एरिया वेयर द कॉलम एड्रेस इज रिटन. ठीक है, हमें जहाँ पर भी हमारे सपोज मुझे लिखना है अरुण को कितने मार्क्स मिले हैं 45. ठीक है, सैबी को कितने मिले हैं 33. सो सिलेक्टिंग अ कॉलम, हम अपने कॉलम में को सिलेक्ट कर सकते हैं. चेंजिंग द कॉलम विड्थ. ठीक है, यू विल चेंज योर कॉलम विड्थ ऑल्सो. ओके, बस आपको ड्रैग करना है. आप सपोज आपके कॉलम को ड्रैग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपना कर्सर पॉइंटर रखना है, देन यू विल इजीली ड्रैग इट. नाउ चेंजिंग द रो हाइट, आप अपने रो का हाइट भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, माउस पॉइंटर आपको ले जाना है, इजीली आपको ड्रैग करना है. नाउ इंसर्टिंग अ ब्लैंक रो. आप अगर अपने डेटा में कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इजीली आप उसमें वर्कशीट्स में अपनी रो एक इंसर्ट कर सकते हैं. नाउ क्या स्टेप फॉलो करेंगे, सिलेक्ट द रो, सिंपल प्लेस पॉइंटर ऑफ एनी सेल्स अबव विच यू वांट टू इंसर्ट अ ब्लैंक रो. जहाँ पे भी आपको अपने ब्लैंक रो इंसर्ट करना है आपको वहाँ पे अपना कर्सर ले जाना है. देन क्लिक ऑन होम टैब पे जाना है. देन क्लिक ऑन इंसर्ट एरो हेड बटन और क्लिक ऑन द इंसर्ट शीट्स रो बटन. ठीक है, इंसर्ट शीट पे भी जाके आप जैसे राइट क्लिक करेंगे आप इंसर्ट रो पे भी वहाँ पर जाकर भी अपनी रो को इंसर्ट कर सकते हैं. नाउ इंसर्टिंग अ ब्लैंक कॉलम. अब सपोज़ आपने रो इंसर्ट कर लिया, अब आप चाहते हैं कि आप अपने डेटा में एक कॉलम भी आपको ऐड करना है. नाउ टू एड द ब्लैंक कॉलम सिलेक्ट द कॉलम और प्लेस सेल पॉइंटर एनी ऑफ द सेल कॉलम बिफोर विच यू वांट टू इंसर्ट अ ब्लैंक कॉलम. आपको जहाँ पे भी कॉलम है ऐड करना है आप अपने माउस का कर्सर कहाँ ले जाएंगे, वहाँ पर ले जाएंगे. देन इंसर्ट शीट कॉलम. ओके, क्लिक ऑन होम टैब एंड इंसर्ट शीट arrowhead button, or if you click on right click and insert the column option also. Okay, now file operations. Now your work is ready, you can open and save it to close when we requirement. अब अपने को क्या करना है, अपने जो डेटा या जो शीट आपने प्रिपेयर किया है now आप क्या करना चाहते हैं, उसे सेव करना चाहते हैं. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव योर वर्क बुक ऑन अ डिस्क टू रिफर इट लेटर वेन एवर नीडेड. जब भी आपको वापस रिक्वायरमेंट होगा आप अपना अगर आपका डेटा सेव रहेगा तो आप इजीली उसे कभी भी ओपन कर सकते हैं. नाउ टू सेव अ वर्कबुक क्लिक ऑन द फाइल मेनू एंड सिलेक्ट द सेव ऑप्शन. फाइल मेनू में जाके आपको सेव करना है. नाउ द सेव एज डायलॉग बॉक्स हैज़ बिन ओपन. टाइप द नेम इफ़ यू वर्कबुक एंड क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन. आप अपने वर्कबुक को जो भी नेम देना चाहते हैं, जिस नाम से आप उसे सेव करना चाहते हैं वो नेम देके उसे एज इट इज़ सेव कर सकते हैं. ना ओपन अ सेव वर्कबुक. अब आपने जो वर्कबुक अपना सेव कर दिया है आप क्या चाहते हैं कि आप उसे ओपन करना चाहते हैं. नाउ वेन एवर यू वॉन्ट टू ओपन अ वर्कबुक विच यू सेव्ड अर्लियर. ठीक है, टू फॉलोइंग स्टेप्स क्लिक ऑन द फाइल मेनू एंड सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन. नाउ
the open dialog box open, select the workbook to open and click on the open option. ठीक है, ओपन पे जाके आप इजीली उसे ओपन कर सकते हैं. नाउ चूज क्लोजिंग द वर्कबुक. आप अपने वर्कबुक को क्या करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं. तो वेन एवर यू वर्क द करंट वर्कबुक इज ओवर, यू कैन क्लोज इट. फॉलो द स्टेप्स. क्लिक ऑन द फाइल मेनू एंड सेलेक्ट द क्लोज ऑप्शन. ठीक है, क्लोज ऑप्शन पे जाके आप इजीली कर सकते हैं. और ना ओपनिंग अ न्यू वर्कबुक. टू स्टार्ट न्यू टास्क यू नीड टू ओपन अ न्यू वर्कबुक. फॉलो द स्टेप्स. आप आपने पुराना अपना एक जो डेटा तैयार किया है आपने उसे सेव कर दिया है. नाउ आप क्या चाहते हैं, एक नया वर्कबुक बनाना चाहते हैं. तो क्लिक ऑन द फाइल मेनू एंड सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन. You are going file menu option and select new option. Now printing time. अब आपने अपने जो डेटा या जो टेबल्स तैयार किया है आप क्या चाहते हैं, उसे प्रिंट करना चाहते हैं ना. यू कैन प्रिंट एंटायर टू पर्टिकुलर वर्कशीट वर्कबुक. वेन एवर यू प्रिंट कमांड यू कैन ऑल्सो प्रिंट प्रीव्यू. लेट्स हाउ डू इट. ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू से आप देख भी सकते हैं कि आपने जो डेटा या जो टेक्स्ट टाइप किया है वो प्रॉपर वे में आ रहा है या नहीं आ रहा है. नो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन ऑल्सो. नो क्लिक ऑन द फाइल मेनू एंड सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन एंड द प्रिंट प्रीव्यू ओपन्स. ठीक है, आपको कहाँ पे जाना है, फाइल मेनू पे जाता है और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना है. अनेबल द रिक्वायर्ड ऑप्शन इन डायलॉग बॉक्स. द मीनिंग्स ऑफ विच मेंशन बिलो. प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट एक्टिव शेड एंड प्रिंट वर्कबुक. ठीक है, प्रिंट सिलेक्शन अनेबल द ऑप्शन टू प्रिंट द सिलेक्टेड रेंज. आपको उसमें रेंज सिलेक्ट करना होगा. प्रिंट एक्टिव शीट अनेबल द ऑप्शन इफ़ यू वांट टू प्रिंट द करंट वर्कशीट विच यू आर यू वर्किंग. ठीक है, आप अगर आपने जिस वर्कशीट पे वर्क किया है आप उसी का ही प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट एक्टिव शीट. नाउ प्रिंट एंटायर वर्कबुक अनेबल द ऑप्शन इफ़ यू वांट टू प्रिंट होल वर्कबुक. अगर आप अपने पूरे होल वर्कबुक को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हैं. नाउ इंटर द नंबर ऑफ कॉपीज़ टू प्रिंट. अब आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको कितने नंबर ऑफ कॉपी चाहिए पर्टिकुलर डेटा की. नाउ क्लिक ऑन द ओके बटन. ओके, सो that's all for today. Now our next class we will see one practical also on this chapter, how we can formatting the Microsoft Office Excel. Okay, so goodbye all of you, have a nice day.